قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. بسم الله الرحمن الرحيم بنستعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. حضرات گرامی، جادو اور جنات کی حقیقت اور علاج کے تعلق سے بات چل رہی ہے. جادو کے مفہوم، اس کی تاریخ گزشتہ دروس میں ہم نے معلوم کیے ہیں. آج ہم معلوم کریں گے کہ جادو کی مختلف قسمیں کیا کیا ہیں، جادو کے اقسام. جادو کے کئی اقسام اہل علم نے بیان کیے ہیں. امام رازی رحمہ اللہ نے 8 اقسام بیان کیے ہیں. امام راغب اصفہانی نے 4 اقسام بیان کیے ہیں. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام رازی نے جو بہت سارے 8 اقسام بیان کیے ہیں، یہ باریک باریک فرق کو سامنے رکھتے ہوئے اور حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو 4 قسمیں اس کی بنتی ہیں. پہلی قسم جس کو نظر بندی یا ہاتھ کی صفائی کہا جاتا ہے، نظر بندی یا ہاتھ کی صفائی، جیسے عام طور سے میجک دکھاتے ہیں، جس کو میجک بھی کہتے ہیں، کہ آدمی کی نگاہوں میں لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، یہ نظر میں لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہے. یا وہ ہاتھ کی صفائی سے ایسے پیش کرتا ہے، لگتا ہے کچھ ہو گیا. ایک جادو کی قسم ہے جس کو نظر بندی یا ہاتھ کی صفائی سے تعبیر کیا جاتا ہے. فرعون کے دربار میں جادوگروں نے جو لاٹھیاں پھینکی تھی وہ اثر میں نظر بندی تھی، کیونکہ قرآن نے یہ کہا کہ جب ان لوگوں نے لاٹھیاں پھینکی تو یخیل، ایسا لگا کہ انہا تسعا، کہ یہ حرکت کر رہی ہے. لاٹھیاں تو ان کی نگاہوں میں ایسا لگا کہ وہ لاٹھیاں حرکت کر رہی ہے، مطلب یہ نظر بندی ہے. حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی، یہ نظر بندی ہے. جادو کی دوسری قسم ہے جنات، برے جنات کو تابع میں کر کے ان کے ذریعے سے کسی پر مسلط کر کے ان کو تکلیف دینا، یا جسم کا یا کسی انسان کے استعمال شدہ کسی چیز کو لے کے اس میں بندش کرنا. یہ اس میں بھی 2 قسمیں بن رہی ہیں. ایک ہے وہ جادو جو جنات کو مسلط کر کے جنات کے ذریعے سے تکلیف دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی کے جسم کا کوئی حصہ لے کے، کپڑا ہو، بال ہو، کچھ لے کے اس میں ایسا جادو کرنا، پھونک مار مار کے، یا بندش جس کو کہا جاتا ہے، بندش کر دیں. ایک جادو کی قسم ہے، اور یہی جادو زیادہ خطرناک ہے. اس کی وجہ سے انسان کی طبیعتوں میں اثر پڑتا ہے، فرق ہو جاتا ہے. جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اس کا انکار کرتے ہیں.
कहते कि नहीं, जादू नहीं हुआ। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ मानेंगे तो कुफ्फार और मुशरिकीन की बात सही हो जाएगी, क्योंकि कुफ्फार और मुशरिकीन ने कहा कि तुम लोग तो इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा, सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने फरमाया तुम तो एक सहरज़दा आदमी की इत्तिबा करते हो, वो जिन पर जादू हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर जादू मान ले तो यह नुकसान आएगा कि कुफ्फार और मुशरिकीन की बात सही हो जाएगी कि सहरज़दा आदमी की तुम इत्तिबा कर रहे हो। ये तो कुफ्फार और मुशरिकीन ने शुरू में कहा जब नबी पर जादू हुआ ही नहीं है। ये तो मक्के की बात है और नबी पर जादू हुआ मदीने में। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था उस वक्त तकरीबन सारी शरीयत नाजिल हो चुकी थी। आपकी वफात से 1 साल के आसपास में है, 1 साल पहले ऐसी बात होगी। सारी शरीयत उतर चुकी थी। और एक एतराज जो उनका है कि जादू नबी पर हुआ मक्के में, मदीने में, और जादू के इलाज के लिए 2 सूरे नाजिल किए गए ना, सूरा मुअव्वज़तैन, क़ुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास। नबी पर जादू हुआ, जादू के इलाज के लिए ये दोनों सूरे नाजिल किए गए। तो ये दोनों सूरे मक्की होना चाहिए कि मदनी होना चाहिए? बोलिए, मदनी होना चाहिए। उसमें क्या लिखा रहता है कुरान में? देखें कभी आप, दोनों सूरा मक्की है। यह भी इनका बहुत बड़ा एतराज है। यह सूरा मक्की है, नबी पर जादू हुआ मदीने में, तो जाहिर सी बात है आप कह रहे हैं कि नबी पर जादू हुआ, उसके इलाज के लिए ये दोनों सूरतें नाजिल हुई, जबकि सही बुखारी की हदीस है ये सब। तो सख्त एतराज है, बड़ा रिमार्क है ये। देखिए, अगर इल्म हो, नॉलेज हो, बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। हकीकत में ये दोनों सूरे मक्के में भी नाजिल हुए, मदीने में भी नाजिल हुए, 2 बार नाजिल हुए। तो शुरुआत के हिसाब से चूंकि मक्के में नाजिल हुए थे इसलिए मक्की लिखा जाता है। फिर नबी पर जब जादू हुआ, जादू के इलाज के लिए दोबारा ये बताया गया कि इन दोनों सूरतों को पढ़ के दम करो। तो उसका मतलब ये नहीं है कि नबी पर जादू नहीं हुआ। बहरहाल बहुत सारे लोग इसका इनकार करते हैं, यह गलत है। सही बुखारी की हदीस वगैरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लबीद बिन आसम यहूदी ने जादू किया, आप पर हसद पे आके बहुत नुकसान पहुंचाया। तो ये हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल नहीं थे, बाल में 11 घाटी डाल के उसमें जो है एक बत्ती, मोमबत्ती से एक पुतला बनाया, उसके अंदर रखा, फिर वो पुतले को सुई चुबाया, चुबोने के बाद एक बॉक्स में बंद करके, संदूक में बंद करके मदीने के एक जंगल में, जो कि बहुत पुराना कुआं था, उस कुएं में ले जाके डाल दिया। फिर उसमें भी जादू किया, खतरनाक तरीके से जादू किया। वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलसल कोशिश कर रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हुए, लेकिन इसकी बार कामयाब हो गए, अल्लाह की मर्जी है वो। तो ये है बंदिश, नबी के जिस्म का बाल लेके उसके बाद बंदिश की है, ये भी एक जादू। और जादू जो शैतान के जरिए से किसी पर हावी करके, मुसल्लत करके तकलीफ देना है, इसी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वलाकिन्न शयातीन कफरू वत्तबअू मा ततलु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफर सुलैमान। हमने कल मालूम किस ताल्लुक से, वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, शैतान कुफर किए। और ये शैतान क्या किए? कुफर यानी जादू सीखे, सिखाए और जादू किए, करवाए। ये शैतान जादुई काम में वो मदद करता है। शयातीन कैसे मदद करते हैं? सबसे पहले शैतान को खुश करना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, लोग कहते हैं कि फला आदमी जिन्नात को कंट्रोल में करके रखा है, जिन्नात उसके ताबे हैं, जिन्नात उसके ताबे हैं। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह तू मेरे बाद मेरे जैसे हुकूमत किसी को नहीं देना। तो जाहिर सी बात है कोई भी जिन को काबू में नहीं कर सकते। अगर कोई कर रहा है तो ये एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर किसी ने जिन्नात को कंट्रोल में करके रखा है, जिन्नात को ताबे करके रखा है, जिन्नात उसकी बातें सुन रहे हैं, लाजिमी माने में वो आदमी काफिर मुशरिक हुआ है, तभी जिन्नात मदद करेंगे। अच्छी तरह सुन लीजिए।
बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जिन ताबे हैं उनके, जिन्नात को ताबे करके रखे हैं, जिन्नात उनकी बातें सुनते हैं, अब उनके पास जाते हैं इलाज मुआलजे के लिए। जिन्नात और इंसान की अज़ली दुश्मनी है, आदम और इब्लीस से वो चली आ रही है, दोनों की अज़ली दुश्मनी है। कोई जिन कोई बुरा जिन जो शैतान है ना, शैतान किसी भी इंसान की मदद हरगिज नहीं करेगा, कभी भी ताउन नहीं करेगा। कब करेगा? जब इंसान को कुफ्र और शिर्क में मुब्तला करे, तभी करेगा, और ना नहीं। अब उसके लिए क्या करते मालूम है? ऐसे ऐसे काम, कुरान को पैर में लिख के या बांध के टॉयलेट में जाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, इस्तिंजा जाते हैं, कुरान को उल्टा लिखते हैं, लिखवा शैतान करवाता है। कुरान पे नाउज़ुबिल्लाह पेशाब करना, अल्लाह रसूल के ताल्लुक से गलत बयानी से काम लेना, हमेशा नापाकी की हालत में रहना, कभी पाकी हासिल नहीं करना, कभी नमाज नहीं पढ़ना, इस तरह से शैतान गलत काम करवाते। ये करो तुम्हारी मदद करूंगा मैं, अभी करता है। नहीं तो गैरुल्लाह के नाम पे ज़बा करवाता है, गैरुल्लाह के नाम पे ज़बा कराता, आओ एक काला बकरा ला के यहां ज़बा करो, काली मुर्गी लेकर आओ, या ऐसा करो वैसा करो, ज़बा गैरुल्लाह के नाम पे ज़बा की शिर्क हुआ। अब शैतान खुश होकर आपकी मदद करेगा, आपकी सुनेगा, सुनेगा क्या? अब वो मजबूर हो जाता, करना पड़ता है। हमने बहुत सारे इसमें देखे इलाज मुआलजे में, तो जब वो आ जाता, आने के बाद उसको तकलीफ दी जाती है और उसको मार पीट के भगाया जाता, तो कहता है, ओपन कहता है, मैं क्या करूं, यहां आए तो तू मार के भगाता, और नहीं आए तो वहां जादूगर मुझे मारता, जादूगर मुझे मारता है, मैं क्या करूं, किधर जाऊं। मैंने बारहा कई मरतबा जो है ये इलाज और मुआलजे में ये चीजें सुनी और देखा है। तो जाहिर सी बात है क्या करते, जिन्नात को मुसल्लत करके उसके बाद उनके जरिए से मदद लेते हैं या तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते, जाओ उसको जाके तकलीफ दे, ये कर वो कर। तो ये जादू की एक किस्म है, ये जादू की दूसरी किस्म है। जादू की तीसरी किस्म है जिसको कहानत और नुजूमी कहा जाता है। सितारे और सैयारों को देखकर गायब की बातें करना, गायब दानी की बातें करना है। सितारे और सैयारों को देखकर गायब दानी का दावा करना, गायब की बातें करना, गायब की बातें बताना। कल एक साहब बोल रहे थे कि एक आदमी मेरे पास आए, कहा कि तुम जाके बाहर जाके कुछ 3 चीजें लिख कर लाओ, मैं बता दूंगा, और हम बता दिया। तो परेशान हो गया। इसकी क्या हकीकत इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट दर्स में समझाऊंगा कि किस तरह से ये लोग गायब की बातें चुराते हैं और उसके बाद एक बात में 10 बात मिलाकर पेश करते हैं। तो ये कहानत और नुजूमी वाली जो बातें हैं, क्या करते हैं जिन्नो शयातीन, आसमान पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला कोई फैसला करता है और मलाए आला जो अल्लाह ताला के करीबी फरिश्ते हैं, उनके पास ये खबर पहुंचती है, तो वो लोग आपस में उसका डिस्कस करते, बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद मलाए आला से नीचे वाले जो फरिश्ते हैं उनको मालूम होता है, वो डिस्कस करते हैं। होते होते करीबी आसमान पे जो फरिश्ते हैं वो डिस्कस करते हैं। ये होते होते क्या होता है, ये फरिश्ते क्या करते, एक के ऊपर दूसरे चढ़ के ऊपर जाके चुराने की कोशिश करते हैं, चुराने की कोशिश करते हैं। अब वहां फरिश्तों के डिस्कस में से कोई एक बात सुन लिए, आके बता देते, देखो ऐसा अल्लाह ने फैसला किया, ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। अब वो अपने जादूगर को आके बताता है कि देख ऐसा ऐसा होने वाला, तू बता लोगों को, लोग तुझे गायब जानने वाला तसव्वुर करेंगे। तो क्या हो गया, शिर्क हो गया। अल्लाह के सिवा किसी और को गायब जानने वाला समझे, शिर्क हो गया। उसमें 10 बातें मिलाकर पेश करता है। तो ऐसे ही लोग आके बताते रहते हैं। अब इसीलिए जब कभी क्या होता है, शैतान को देखते फरिश्ते सितारों को लेकर मार भगाते हैं, रुजुमल लिश्शयातीन, शैतान को मार भगाया जाता। कभी वो सितारों से जल भुन के राख हो जाते हैं और कभी कभार भाग के निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ये जो शिहाब साकिब जो वहां जाकर सुनने की कोशिश करते हैं ना, सूरह साफ़ात की शुरुआत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, हिफ्दम मिन कुल्लि शैतानिन मारिद, इल्ला, तो आगे कहा कि देखो, इल्ला जो उसको उचकने की कोशिश करते हैं आगे बढ़ के, कि कुछ चीजों को उचक लेने की कोशिश करते हैं,
उचक लेने की कोशिश करते हैं, और शैतान जब उचक लेने की कोशिश करते हैं तो शिहाब साकिब के जरिए से उनको मार भगाया जाता है। फअतबाहु शिहाबुन साकिब, उसके पीछे शिहाब साकिब से मार भगाया जाता है। तो एक दो चीजें कामयाब हो गए, आके बताना शुरू कर दिए। तो ये है नुजूमी, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, सितारे सैयारों को देखकर, हाथ देकर या लकीर खींच के कुछ गायब की बातें, तकदीर की बातें बताते हैं। उसमें से आप भी 10 बात बताओ, 2 जो है तीर लग जाएंगे। हाँ, याद रखो, ये भी जादू की एक किस्म है, क्योंकि गायब दानी का दावा करते हैं, इसलिए इनके बारे में भी कहा गया कि ये भी गायब है। जादू की एक और किस्म है जिसको कहा जाता है कि आदमी इतने ज्यादा जबान को इस्तेमाल करें, बाज जबान को अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया इन्ना मिनल बयान लसहरा, बाज लोगों का बयान ऐसा होता है कि सामने वालों पे जादू जैसे असर हो जाता है। ऐसे बात करेंगे, ऐसे आपको समझाएंगे, आप जो है मबहूत होकर सुनेगा, हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा है, ये जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। ये जादू जैसे असर होता है। इन्ना मिनल बयान लसहरा, बाज बयान जादू जैसे असर रखता है। तो इससे भी चौकन्ना रहना है कि हकीकत में ये चर्ब जबानी से, भोलेपन से काम ले रहा है या सही बोल रहा कि गलत बोल रहा है। जादू की आखिरी किस्म जिसको नबी ने जादू कहा वो है गीबत, चुगलखोरी को नबी ने जादू से ताबीर किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है जिसको कि इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है, सही मुस्लिम की हदीस है, कहा कि अला उनब्बिउकुम मल अदह, क्या तुम्हें ना बताऊं कि अदह क्या है। नबी ने फरमाया कि ये जादू क्या है तुम्हें बताऊं। कहा कि क्या बताइए। कहा कि या नमीमा अलक़ालतु बैनन नास, गीबत चुगलखोरी, यहां वहां हर जगह बोलते फिरना, एक चीज को मैनिपुलेट करके बार बार यहां वहां बोलते असर हो जाता है। झूठ को इतने बार बोलो, बोलते असर हो जाता है। लोग समझते हैं कि भाई हाँ हकीकत है, ये भी एक जादू है। गीबत चुगलखोरी पीछे बताते रहे, बार बार बोलते असर होता है, सुनते असर हो जाता है, जैसे जादू जैसे असर होता है। तो ये जादू की किस्में हैं। आगे हम मालूम करेंगे कि जादू, करामत और मोजेजा में क्या फर्क है। जादू क्या है, करामत क्या, मोजेजा क्या है, करामत औलिया वगैरह है ना, इंशाल्लाह मालूम करेंगे। और ये गायब की बातें ये लोग कैसे बताते हैं इंशाल्लाह भी मालूम करेंगे। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको जादू जिन्नात से महफूज रखें, किताब और सुन्नत के सही समझ बूझ अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।